हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 12, आर यू रेडी फॉर टेस्ट? कौन सी चैप्टर का टेस्ट देना है? थर्ड चैप्टर का टेस्ट देना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। और टेस्ट के लिए एक गूगल शीट तैयार हो रही है। मैं जब वो तैयार हो जाएगी तो आपको हर बच्चे को वो टेस्ट देना है, क्योंकि उसके मार्क्स प्रिंसिपल सबको भी दिखाने हैं। ओके बच्चों, गेट रेडी फॉर द टेस्ट फ्रॉम चैप्टर 3। चैप्टर 4 आपका मैं पढ़ा रही हूँ आपको। चैप्टर 4 इज गोइंग ऑन और चैप्टर 4 में कुछ सब हेडिंग्स हैं। चैप्टर 4 का क्या नाम है? चैप्टर 4 इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इट्स मेन हेडिंग्स आर व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम एंड स्टेजिस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनफर्टिलिटी। ये इसके मेन हेडिंग्स हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अबाउट दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम एंड स्टेजिस, yesterday I sent you notes as well as some problems also there. So if you have any problem about this, then you can ask me. Notes already sent to you. Like children, please, now today you are going to study about the population explosion and birth control. So what is the topic of today? Today's topic is population explosion and birth control. Population explosion and birth control. Population explosion and birth control. As the name indicates, population explosion in the whole world, the population is increasing very fastly, and the result is that, according to the Darwin theory, nature has its own capacity to. Nowadays, a disease, corona disease, is spreading all over the world, and you are well aware about this. Because of this disease, every person, we are also under the lockdown. And the population of different countries like America and Britain and Iran, etc., is lowering down. So this is also the role of nature. तो nature का अपना रोल होता है कंट्रोल पॉपुलेशन करने का, but somehow the human being also control the population. क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है? Because the sources of the nature are limit. Natural sources are in limit. But when the population, over-increasing population is there, then there is a problem for everything, for food, for space, for water and other natural sources. ये बात आपको समझ में आ रही है? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग समझ में आया। पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो नेचर अपना रोल प्ले करती है, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर आल्सो देयर. ह्यूमन बीइंग कैन आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन. So in this heading you are going to study what are the different methods to control the population. There are different contraceptive methods. Contraceptive methods are used by the human being to control the population. Various contraceptive methods are used by the human being to control the population. Human being are used contraceptive methods, and these various methods are like natural method or traditional methods. The another name of natural method is traditional methods to control the population. Human being के बारे में आप पढ़ रहे हैं, रिमेम्बर दिस, यहाँ पर आपको केवल ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन पढ़ना है. नेचुरल मेथड्स और ट्रेडिशनल मेथड. सेकेंड मेथड is barrier method. Barriers are there. And third is IUDS, intrauterine devices method, and fourth is oral contraceptive methods. Oral contraceptive methods, implants or injectable methods. Surgical methods. These are the various methods are used by the human being to control the population, like natural method or traditional methods, barrier methods. IUDC stands here for intrauterine devices. Oral contraceptive methods, pills are used here. So this method can also be called chemical method, or you can also define natural method, chemical method, and surgical method.
3 कैटेगरी में इनको आप डिवाइड कर सकते हैं, पर यहाँ पर इस तरह से आपकी बुक में लिखा है एनसीईआरटी में, देयर आर वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. Natural method, once again I repeat, natural method or traditional methods. Second method is barriers, third is IUTS, fourth is oral contraceptive methods or chemicals or pills, implants or injectable methods, and surgical methods. So one by one you will study today what are these methods. Natural methods. About natural and traditional method, yesterday I sent you the notes also, but once again I am repeating all these methods. If you have any problem then you can ask. Natural methods, there are three different methods of fertility control in human beings. Natural, नाम से पता लग रहा है, natural methods है, they have no side effect generally. Like first method is periodic abstinence. Periodic abstinence. Second method is withdrawal or coitus interrupt, and third method is lactational amenorrhea. Children, generally from these three natural methods, one method is generally asked in the board exam. It means this question is also very important for either in 2 marks or 1 marks question. So what are the natural method or traditional method? There are 3 ways. These are 3 natural methods to control the population: periodic abstinence, withdrawal or coitus interrupt, and third is lactational. Lactational word is there. Lactational amenorrhea here. Once तो मैं इनको एक बार रिपीट कर देती हूँ. Yesterday I sent you the notes also. Periodic abstinence. And you have already studied the previous chapter human reproduction. Menstrual cycle is there. पढ़ाया आपने menstrual cycle, and in menstrual cycle you have studied there is a ovulation phase also. And ovulation phase generally occur of the menstrual cycle either on 14-15 days like this. तो periodic abstinence उसी word से यहाँ पर related है. Periodic means avoiding this fertile period, generally from 10 to 17 days. Couple can avoid this period, 10 to 17 days from coitus. This because this period is called the most fertile period, and ovum is available in the fallopian tube there, so there are more chances for the fertilization. So this period can be avoided. ठीक है, समझ में आया? Withdrawal or coitus interrupt. Withdrawal or coitus interrupt means here is also the before ejaculation of the sperm, the penis can be withdrawn by the male partner. So this method is withdrawal or coitus interrupt. Lactational amenorrhea. Lactational word is used for generally for the milk yielding period. It is called lactation period, but in human being this period is also called breastfeeding period of the child also. So as long as the breastfeeding is possible to the child, there is very less chances of the ovulation. So this period only can be safe up to the 6th month, and after that this period is not very generally considered as more safe up to the 6th month. That's why the breastfeeding can be encouraged to the mother. So this is about the natural method of fertility control. And what is second method? Barrier method. Second method is barriers. Barriers, बीच में कोई भी चीज रोकना. ठीक है, जैसे अब मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ तो मैं बीच में हाथ लगा लूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये बीच में किसी चीज को रोकना. तो बैरियर मेथड इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल टू अवॉइडिंग द स्पर्म एंड ओवम मीटिंग फिजिकली. बैरियर मेथड इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जनरली टू अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम फिजिकली. ठीक है, कुछ ऐसे मेथड्स यूज करते हैं जिससे ओवम का और स्पर्म का फिजिकली मिल ना पाएंगे. ठीक है, इसलिए इस मेथड का क्या नाम है? बैरियर मेथड. अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम फिजिकली. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. फॉर एग्जांपल, कंडोम्स. कंडोम्स आर यूज्ड एज ए बैरियर मेथड. Condom, for example, as in the males, Nerode is generally used
Roll is used as a condom and roll is made up of either the rubber, ठीक है, रबर का या लेटेक्स शीट का बना होता है, which is used by the male partner as well as in the females also. In the female, some barriers are used like bolt, cervical caps, and diaphragms. Bolt, cervical cap and diaphragms are used by the female. You remember here as a barrier method, and these devices are inserted into the uterus of the female or in the vagina of the female. These devices are inserted and this nirodh is used by the male partner. तो ये किसकी एग्जांपल है? These are the method of barrier method. Then third method is IUDS. IUDS, intrauterine devices, ठीक है. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी आप डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन, आप इस तरह से पढ़ते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, एंड सम पीपल आल्सो प्रोनाउंसिएट इट एज यूट्राइन डिवाइसेस. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, यूट्राइन डिवाइसेस नाम से पता लग रहा है यूट्रस में यूज होते होंगे, एंड दीज मेथड्स आर यूज्ड बाय द फीमेल्स. ठीक है, यूट्रस किसमें होती है? फीमेल में, इसलिए आईयूडीएस का यूज किसमें होगा? दे आर यूज बाय द फीमेल. आईयूडीएस, ठीक है. आईयूडीएस मेथड्स मींस देयर आर 3 different ways of IUDS. They may be copper releasing, IUDS. Second type, hormone releasing, IUDS, intrauterine devices. Copper releasing, hormone releasing, and third is non-medicated IUDS. ठीक है, कितनी कैटेगरी हो सकती है? कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग एंड नॉन मेडिकेटेड IUDS. तो हियर द एग्जांपल ऑफ कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस. फर्स्ट का एग्जांपल है copper releasing devices are copper T, copper 7, copper T, copper 7, multi-load. इनकी एग्जांपल आपको याद करनी है. कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस which are used by the female, they are copper T, copper 7, multi-load. हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस, जो हार्मोन रिलीज करेंगे, नाम से पता लग रहा है हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस आर प्रोजेस्टेरोन and LNG20. ठीक है, इसके एग्जांपल है ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस, प्रोजेस्टेरोन एंड LNG20. These are the example of hormone releasing devices. Non-medicated devices. Example of non-medicated IUDs are loops and lipids. ठीक है, loops and lipids. क्या लिखे हैं मैंने यहाँ पर? There are some example of IUDs which are generally used by the female. Copper releasing IUDs के एग्जांपल में copper T, copper 7, multi-load. ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग IUDs के एग्जांपल हैं हार्मोन रिलीजिंग दिस प्रोजेस्टेरोन एंड LNG20. थर्ड, नॉन मेडिकेटेड IUDs हैं लूप्स एंड लिपिड्स. ठीक है, ये एग्जांपल है. अब वन बाय वन आपने इनका रोल पढ़ना है कि जो कॉपर रिलीजिंग IUDs हैं, कॉपर T, कॉपर S, multi-load, इनका रोल क्या है in the fertility control. Role of copper releasing IUDs. Copper releasing IUDs, नाम से पता लग रहा है copper releasing IUDs release copper ions. क्या रिलीज करते हैं ये? copper ions. ठीक है, और यहाँ पर याद रखिए आप, they generally attack on the sperm. Copper releasing IUDs releases
क्या करते हैं ये, दे रिलीज कॉपर आयंस। और कॉपर आयन फिर क्या करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉपर रिलीजिंग जो आईयूडीएस हैं, हाउ दे कंट्रोल द फर्टिलिटी। फर्स्ट इस पर अटैक करते हैं, दे अटैक ऑन द स्पर्म, इट मींस दे रिड्यूस द or you can say suppress, they suppress the motility of the sperm। स्पर्म की स्पीड जैसे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो ये स्पर्म की मोटिलिटी मीन्स स्पर्म की स्पीड को कम करते हैं, ठीक है। और स्पर्म पे अटैक करेंगे, आप यहाँ पर बात का ध्यान दीजिए, स्पर्म पर अटैक करेंगे, दे ऑल्सो दे रिड्यूस द fertilizing capacity of sperm। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है कि कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस, हाउ कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस रिड्यूस द फर्टिलिटी और हेल्प, दे आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द बर्थ, राइट। तो सीधे आप इस तरह से याद रखो, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस इस पर अटैक करेंगे, अटैक ऑन द स्पर्म। और स्पर्म पे कैसे करते हैं, दे सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की स्पीड को कम करेंगे, एंड दे आल्सो रिड्यूस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। किसका पॉइंट है ये, रोल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। सेकेंड टाइप के जो आईयूडीएस हैं वो कौन से थे, हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, हाउ डज दे वर्क, हार्मोन रिलीजिंग IUDS कौन से, प्रोजेस्टेरॉन एंड एलएनजी। हार्मोन नाम से पता लग रहा है क्या रिलीज करते होंगे ये, हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन एक्ट करेंगे कैसे, there are two important function of these hormone releasing IUDs, they make uterus unsuitable for, they make uterus unsuitable for implantation। ठीक है, यूट्रस को क्या करते हैं, अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, बिकॉज इम्प्लांटेशन कहां पर होगा, जाके इन द पार्ट ऑफ यूट्रस, के यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं। सेकंड फंक्शन, दे ऑल्सो दे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ mucus of cervix and retard the entry of sperm, right। तो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, हार्मोन रिलीजिंग, एंड दे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द म्यूकस ऑफ सर्विक्स, म्यूकस ऑफ द सर्विक्स, and retard the entry of the sperm to the uterus, or you can say inside the uterus। तो ये किसके दो फंक्शन है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, दो ही फंक्शन किसके थे, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, वो स्पर्म पे एक्ट करेंगे और ये दोनों फीमेल यूट्रस पर एक्शन करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, पहला कौन सा था, नेचुरल मेथड, सेकंड इज बैरियर, थर्ड इज IUDs, and fourth method oral contraceptive। Oral contraceptive, oral as the name indicates, these are generally pills because they are taken injected orally through the mouth, so the name is oral contraceptive because they are generally taken through the mouth, so these are generally called pills। ठीक है, क्या नाम है इनका, पिल्स है, दवाई में ली जाती है, टेबलेट्स फॉर्म में ली जाती है, दे आर जनरली टेकन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स पिल्स आर टेकन, एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड एंड पॉपुलर मेथड अमंग फीमेल टू कंट्रोल द बर्थ पॉपुलेशन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फीमेल में ही यूज होगा दिस मेथड, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड बाय द मेल, यू रिमेंबर यार, टेबलेट्स आर टेकन बाय द फीमेल, पिल्स ली जाती है। और पिल्स का किस फॉर्म में ली जाती है, क्वेश्चन भी बोर्ड में आ जाता है,
किस फॉर्म में कैसे, व्हाट इज द मेथड टू टेक इन द पिल्स. दो देयर आर टू मेथड्स. वन मेथड इज pills have to be taken daily. Daily means 21 days, up to 21 days. ठीक है, लगातार इनको किस दिन तक लेना है. Pills have to be taken daily up to the 21 days just after finishing of menstrual cycle. ये बात समझ पा रही है. menstrual cycle finish होने के 5 days, after 5 days they are taken regularly. ठीक है. सेकेंड मेथड है, एक और पिल आ रही है आजकल, दिस इज सहेली. सहेली इज वेरी पॉपुलर पिल विच इज टेकन बाय द वुमेन, वेरी पॉपुलर. एंड दिस सहेली पिल इज डेवलप्ड बाय द CDRI. CDRI for Central Drug Research. C for Central, D for Drug, R for Research and I for Institute of Lucknow. ठीक है. CDRI फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ ने इसको बनाया सहेली. और सहेली को डेली नहीं लेना है. इट इज टेकन वंस इन ए वीक पिल्स, वंस इन अ वीक. ठीक है. इसको हफ्ते में एक दिन लेना होता है सहेली को. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या मतलब है? इस तरह से किस फॉर्म में ली जाती है? टेबलेट्स फॉर्म में ली जाती है, खाई जाती है ये, इसलिए इसका नाम है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. एंड दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय द फीमेल. तो पिल्स को कैसे लेना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में. कुछ पिल्स हैं जो डेली लेनी है 21 डेज जस्ट आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. और जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी तो इसको बंद कर देना है. एंड आफ्टर फिनिशिंग व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ओवर देन सेम प्रोसीजर रिपीटेड. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर. दूसरी पिल आ रही है आजकल जो वेरी पॉपुलर, दिस इज सहेली एंड इट इज डेवलप्ड बाय द CDRI. फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ विच इज टेकन वंस इन ए वीक. ठीक है. ये भी पिल्स भी वही हार्मोन्स होते हैं जनरली. तो इनका फंक्शन क्या है पिल्स का? फंक्शन ऑफ दीज पिल्स पिल्स मीन्स क्या ले रही है? केमिकल है, ये केमिकल मेथड है, टेबलेट्स को में ली जाती है. ठीक है. दे प्रिवेंट, क्या काम करेंगे? दे प्रिवेंट ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, they prevent ovulation, implantation, etc. and also make uterus hostile. uterus hostile लिख लेना यहाँ पे. make uterus hostile to the entry of sperm, to the entry of sperm. ठीक है. तो पिल्स मीन्स केमिकल्स, दवाइयां ली जाती है. सहेली में आप इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे. सहेली को इट इज ऑल्सो कॉल्ड, कैसे लेते हैं सहेली? वंस इन ए वीक लेनी है. इससे पहले जो टेबलेट्स ली जाती है वो लगातार 21 दिन तक लेनी है. ये बात समझ आ रही है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में उसको छोड़ देना है. जस्ट आफ्टर फिनिशिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन दे आर रिपीट इन द सेम वे. तो कौन सा मेथड है ये? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. आफ्टर दैट द अनदर मेथड which is called implants or injectable method. Implants or injectable method, they also function just like the oral contraceptives, and there are some this is the combination of hormones like progesterone. हार्मोन्स के नाम याद करने हैं आपने. हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन और द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. ठीक है. ये हार्मोन आप पहले भी पढ़ चुके हैं. कौन कौन से हार्मोन्स लगाए जाएंगे इम्प्लांट्स में? इम्प्लांट करना है या इंजेक्शन फॉर्म में लेना है. फंक्शन इनका कैसा सेम है? जस्ट लाइक पिल्स. तो
तो पिल्स में भी कुछ क्या होते हैं, हार्मोन्स ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन और द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर, क्या करेंगे आप, इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, by the doctor, ठीक है, by the expert doctors, and they also behave or function just like a oral contraceptives. This also function like they reduce or they inhibit the ovulation and implantation and makes the cervix hostile for the entry of the sperm. Implantation. कितने मेथड हो गए बच्चों, कितने मेथड, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, IUPS मेथड, oral contraceptive method, implant or injectable method, and then last is surgical method. Surgical method, this is actually a permanent or irreversible method. अब तक जो आपने मेथड्स पढ़े थे वो कैसे थे, रिवर्सिबल थे, पर ये कैसा है, परमानेंट और इरिवर्सिबल मेथड ऑफ फर्टिलिटी और बर्थ कंट्रोल, इरिवर्सिबल मेथड, ठीक है। इसके रिवर्सल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर जरूरत पड़े टू प्रोड्यूस फॉर प्रेगनेंसी, देन जनरली these methods because they are the permanent methods. And the surgical method are of two types. One is tubectomy and second is vasectomy. ठीक है, पहला मेथड कौन सा है, ट्यूबेक्टोमी, सेकंड मेथड इज वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी बता सकते हो किसमें होता होगा, फैलोपियन ट्यूब किसमें होती है, फीमेल्स में। तो ये जनरली ट्यूबेक्टोमी मेथड इज यूज्ड इन द फीमेल एंड वेसेक्टोमी मेथड इज यूज्ड इन द मेल्स। वेसेक्टोमी मींस वासा डिफरेंस किसमें होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द मेल, एंड ट्यूबेक्टोमी इज इन द फीमेल। So tubectomy method, permanent method, surgical method, it is generally used in the female. Tubectomy में क्या करते हैं, ठीक है, what is the name, tubectomy. Tubectomy fallopian tube आपको पता है इस तरह से है, इसका आपके बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, दोनों तरफ से ये इधर से यूट्रस से ओवरी और ये यहाँ पर यूट्रस है, ये fallopian tube को काट देते हैं, ठीक है। In tubectomy method, a small portion of the fallopian tube is removed or tied up, या तो इसको रिमूव करेंगे या इसको टाइड अप मींस बांध देते हैं, ठीक है, रिमूव और टाइड अप विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इंसिजन आइदर इन द एब्डोमेन रीजन और फ्रॉम द यूट्रस साइड, कहीं से भी इसको कट लगा दिया जाता है। दिस मेथड इज डन इन द फीमेल ट्यूबेक्टोमी। सर्जिकल मेथड है, परमानेंट मेथड है, फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं या बांध देते हैं, इसका डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। क्यों बांध दिया काट दिया जाता है, टू प्रिवेंट द ओवुलेशन, ओवम यहाँ से घर आना है उसको रोकने के लिए यहाँ पर इस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, वेसेक्टोमी इज डन इन द मेल, वासा डिफरेंस पार्ट ऑफ द टेस्टिस इज कट इन द सेम वे, कट और टाइड अप फ्रॉम द स्मॉल इंसिजन छोटा कट लगाते हैं, आइदर फ्रॉम द स्क्रोटम साइड, from the scrotum side in the male. So this method is vasectomy. So these are two methods, surgical method, and for this the diagram tubectomy vasectomy का डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, NCERT में आप देख लेना, वहां पर दो डायग्राम दिए हुए हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल का बना हुआ है। तो वन है फैलोपियन ट्यूब को कट करना है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। बुक के डायग्राम्स को बहुत ध्यान से देखना आपको, तो हर पेज के डायग्राम पे आप जरूर नजर डालेंगे। ये देखिए ये डायग्राम है, आपको पहचानिए यहाँ पर ये किसका डायग्राम है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल एंड दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। तो ट्यूबेक्टोमी में देखिए आपकी फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से स्मॉल एरिया से यहाँ से इसको यहाँ से काट रहे हैं, इसको कट एंड टाइट, फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइट, ठीक है, ये यहाँ से इसको काटा, ये ट्यूबेक्टोमी क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को काटा हुआ है इसलिए इसका नाम ट्यूबेक्टोमी है। वासा डिफरेंस में देखो, वासा डिफरेंस को काटा है यहाँ से, बिकॉज वासा डिफरेंस का क्या है, डक्ट है which bring the testis from the which bring the sperm from the testis, तो इसको काट दिया जाता है, इसको काट दिया यहाँ से, इसको हम यहाँ से इधर एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड किसमें यूज होता है, वेसेक्टोमी इज यूज्ड इन द मेल, ट्यूबेक्टोमी इज यूज्ड इन द फीमेल। आगे समझ में, तो ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब इज कट और टाइट, इन वेसेक्टोमी वासा डिफरेंस इज कट एंड टाइट इन द मेल,
ध्यान रखना वासा डिफरेंस को काटना है, तो वासा डिफरेंस एक डक्ट है जो मेल में होती है, इसलिए इसका नाम है वेसेक्टॉमी। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से आप पढ़ लेना। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। क्या पढ़ा है आपने आज? टुडे यू हैव स्टडीड अबाउट द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। रिमेंबर दिस। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसमें कल मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, एमनियोसेंटेसिस। यहाँ पर देखिए, इसको मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। ठीक है, दिस टेस्ट इज नाउडेज इज मिसयूज्ड बाय द पीपल। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए एमनियोसेंटेसिस इसका नाम क्यों है और इस टेस्ट का यूज क्या है और इसका मिसयूज क्या है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ फीटस। क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ फीटस to determine the sex of a child। ठीक है, तो इसका नाम एमनियोसेंटेसिस क्यों पड़ा? बिकॉज यूट्रस में किसी फीटस जिसके अंदर रहता है, यूट्रस में वहां पर एक फ्लूइड होता है, फीटस के चारों तरफ फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोन फ्लूइड। क्या नाम इस फ्लूइड का? फीटस के चारों तरफ फ्लूइड भरा रहता है, इसका नाम है एमनियोन। तो इंजेक्शन से इस फ्लूइड को निकाल लेते हैं, बिकॉज इसकी बॉडी सेल्स इस फीटस की इस फ्लूइड में रहती होंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल पैटर्न यू हैव ऑलरेडी नो दैट determine the sex of a child in the human being, sex chromosome XX in the female and XY in the male। ये तो आपको मालूम है ना, XX किसके लिए होता है? सेक्स डिटरमिनेशन करने के लिए क्रोमोसोम, फीमेल के लिए हम सेक्स क्रोमोसोम XX लिखेंगे और XY फॉर द मेल। तो ये टेस्ट किस पे बेस्ड है? ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ द फीटस। अगर सेम्यूल फ्लूइड में क्रोमोसोम पैटर्न XX आता है, इट मींस द चाइल्ड इज फीमेल, और अगर ये आता है तो मेल होगा। ठीक है, और ये टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। इसका मेन एम है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या कोई ऐसा तो नहीं है कि बच्चा मेंटली या फिजिकली रिटार्ड हो रहा हो, या ऐसा कोई डिसऑर्डर व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड थ्रू आउट द लाइफ। तो उसको ऐसे सच टाइप ऑफ केसेस देयर, देन दिस फीटस इज अबॉर्टेड। बट नाउडेज दिस टेस्ट इज मिसयूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, whether the child is male or female। Everyone has desire to have the male child or boys। ठीक है, सबको बॉयज चाहिए। तो फीमेल फीटस को क्या करते हैं जनरली, सम इलिटरेट पीपल्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, दिस फीटस इज अबॉर्टेड एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड्स। ठीक है, ये बहुत राजस्थान वगैरह में हरियाणा में बहुत कॉमन है, लड़कियों को जन्म से पहले ही मार देना। ठीक है, कैसे पता चल जाता है? जन्म से पहले ही जब गर्ल इज मेल और फीमेल, इसके लिए टेस्ट होता है एमनियोसेंटेसिस, और कॉमनली इसको अल्ट्रासाउंड टेस्ट नाम दे देते हैं। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको जनरली क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लिया हमने। एक्चुअली अल्ट्रासाउंड तो नहीं है ये। कौन सा टेस्ट है ये? एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। क्यों नाम पड़ा इसका? बिकॉज यूट्रस में जो फीटस जिस फ्लूइड में रहता है उस फ्लूइड का नाम है एमनियोन। इसलिए इस फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू निकाल लेते हैं, और उसमें क्रोमोसोम पैटर्न है, मेल के लिए फीमेल, ये मेल, एंड दिस इज फॉर फीमेल पैटर्न। अगर ये पैटर्न आता है क्रोमोसोम का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, तो ये पता लग जाता है whether the child is male और फीमेल। ठीक है, टेस्ट का यूज क्या है इसका, क्यों ये टेस्ट करते हैं? टू फाइंड आउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिसऑर्डर। बट नाउडेज इसमें क्या करना है, बैन लग गया ना इसका। क्यों टेस्ट किया जाता है ये, क्यों इसका लोग मिसयूज कर रहे हैं? टू अबॉर्ट द फीमेल गर्ल चाइल्ड, और इसको बोलेंगे फीमेल फीटिसाइड। ठीक है बच्चों, तो ये टेस्ट क्या है? एमनियोसेंटेसिस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से डायरेक्टली आपसे इसका वन वर्ड में पूछा सकता है। सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करने के उस पे कौन सा टेस्ट होता है, बहुत सारे नाम आपको दे सकते हैं एमसीक्यू में, ये हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। यू हैव टू डू ऑल दिस वर्क एंड शो मी। कॉपी नहीं दिखा रहा है बच्चे को बिल्कुल कोई भी। ओके, और मुझे बताएंगे कैसा रहा आपका, कुछ समझ में आ रहा है इस मेथड से या नहीं आएगा। ठीक है, सो